قلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ سال بھر کے حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اسلامی ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ عاشوراء کا روزہ رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اور اس کا ثواب بھی بیان کیا کہ جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھے اس کے سابقہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہود کی مخالفت کے لیے آپ علیہ السلام نے 10 کے ساتھ 9 کے روزے کو شامل کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ تو یہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، خاص طور پر روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے احب الصیام الی اللہ بعد رمضان صیام الشہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب روزہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے محبوب روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی مہینے کا ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے مہینے کا روزہ جو رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جانا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ مہینہ افضل ہے، حرمت والا ہے، تقدس والا ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، ثواب کمانے کا مہینہ ہے، لیکن کیا کہا جائے کہ اس حرمت والے مہینے میں کہ وہ حرمت والے مہینے کہ جن کا احترام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے اور حرمت والے مہینوں میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہ کہتے، لڑائی جھگڑے سے باز رہتے، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں کچھ ایسے عاقبت نااندیش لوگ موجود ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں یوں واقعہ کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں
मजालिस मुनाकिद करते हैं, लेकिन मुल्क के अमन व अमान से खेलते भी हैं और मुसलमानों के मुक़द्दसात की तौहीन भी करते हैं। और यह सिलसिला यूं तो सारा साल जारी रहता है, लेकिन मुहर्रमुल हराम के हुर्मत वाले महीने में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत वाले महीने में इसका सिलसिला बढ़ जाता है और इनकी ज़बानों पर कोई लगाम नहीं रहती। और किन मुक़द्दसात की तौहीन करते हैं? नबी पाक के जानिसारों की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिजरत करने वालों की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद करने वाले अंसार की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गज़वा करने वाले गाजियों की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इक्तिदा में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने नबुव्वत से जन्नत की बशारत पाने वाले जन्नतियों की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्तो बाजू सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तौहीन करते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद सैयदना उमर इब्ने खत्ताब की तौहीन करते हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दामाद सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन की तौहीन करते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैयदा खदीजा के बाद सबसे प्यारी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के जिसकी पाक बाजी की गवाही रब का कुरान सूरा अन-नूर भी देती है, उनकी तौहीन की जाती है। कभी वाज गाफ अल्फाज में, कभी इशारे से, कभी किनाए से, कभी अकीदा इमामत बयान करते हुए, कभी बागे फदक का तस्करा करते हुए, कभी नबी पाक की वरासत का तस्करा करते हुए, कभी गदीर खुम का खुतबा पढ़ते हुए नबी पाक के सहाबा की, आपके जानिसारों की तौहीन और इहानत की जाती है। बड़ा वाक़या करबला का इन सहाबा से, इन नुफूसे कुदसिया से क्या ताल्लुक है? कोई इस वाक़े से 50 साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे, कुछ ऐसे थे जो इस वाक़े से 40 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, कुछ ऐसे हैं जो इस वाक़े से 30 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके। जनाब सिद्दीक की बात कर लीजिए, वो इस वाक़े से करीबन 48 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़े से तकरीबन 38 साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुके। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब के बाद सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन इस वाक़े से 25 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हर साल ये तमाशा लगता है, हर साल फसाद बर्पा होता है और सुन्नी अहले सुन्नत उलमा जिम्मेदारी का सबूत देते हुए न हमने कभी मेंबरों पर, न हमने कभी जलसों में, न कभी अपनी तकरीरों में, न कभी अपने वाजों के अंदर पाकिस्तान के अंदर पिछले 20 साल से सबसे ज्यादा अमन व अमान के हवाले से, फिरका वारियत को रोकने के हवाले से अहले सुन्नत उलमा ने जिम्मेदारी का सबूत दिया। इतना जिम्मेदारी का सबूत दिया कि इनकी जबानें तान के बावजूद काफिर की गर्दान को रोका, नेशनल एक्शन प्लान का साथ दिया, इस्ताक और नजरिया पाकिस्तान का साथ दिया, पैगाम पाकिस्तान का साथ दिया। आखिर क्या वजह है कि नबी पाक के नाम पर, अल्लाह के नाम पर
بننے والے ملک میں اگر گالی پڑتی ہے صدیق کو پڑتی ہے، فاروق کو پڑتی ہے، ذوالنورین کو پڑتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو گالی پڑتی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ عام لوگ تھے، عام لوگ نہیں تھے۔ مالک کائنات ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اور کافروں کے حوالے سے یہ بڑے سخت روح ہیں۔ تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اگر آپ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، کبھی سجدے کی حالت میں دیکھو گے، کبھی رکوع کی حالت میں دیکھو گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ نے ان کی نشانیاں دیکھنی ہیں، ان کے چہروں کو دیکھو، ان کی پیشانیوں کو دیکھو، ان پہ سجدے کے نشان ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، یہ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے، سورہ الفتح کی آیت اعلان کر رہی ہے کہ ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر رب کے سامنے سجدہ کرنے کے نشانات نظر آتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ نبی پاک کے ساتھی وہ لوگ ہیں کہ جن کی یہی مثال قرآن مجید تو کیا توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور ان کی مثال ایک ایسی کھیتی کی طرح ہے، جو کھیتی جس نے اپنی کومپل کو نکالا، پھر اس نے مضبوط کیا اپنی کومپل کو، اور اس کے بعد وہ موٹی ہو گئی، اور پھر اپنے تنے پر مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تاکہ کاشتکار کو وہ کھیتی خوش کر سکے، اور اس کے ساتھ لیغیظ بہم الکفار، یہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی یہ کھیتی کی مثال، تاکہ یہ کاشتکار کو، اپنے کاشت کرنے والے کو، اپنے لگانے والے کو یہ کھیتی خوش کرتی ہے، اور جو کافر ہیں وہ اس کھیتی سے، نبی پاک کے صحابہ سے غیظ و غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور لوگوں بعد میں آنے والے لوگ اگر یہ لوگ اسی طرح کا ایمان لائیں جیسا ایمان نبی پاک کے صحابہ کا ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر ان کا ایمان نبی پاک کے صحابہ جیسا نہیں ہے پھر یہ واپس پلٹ جائیں، جس کا ایمان نبی پاک کے صحابہ جیسا نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا ایمان ہی قبول نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کے ایمان پہ شک کیا جائے، ان پر کفر کے فتوے لگائے جائیں، ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، جن کے بارے میں مالک کائنات کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ ان جیسا ایمان لے کے آئیں گے تو ان کا ایمان قبول ہوگا، اگر ان جیسا ایمان نہیں ہوگا تو لوگوں کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یہ نبی پاک کے صحابہ کی گستاخیاں شروع سے منافقین کر رہے، مدینہ کے اندر منافقین اور جو اندر سے یہودی اور اوپر سے مسلمان بنے تھے، عبداللہ ابن ابی کی اولاد اور عبداللہ ابن ابی، جب ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، یہ منافقین نبی پاک کے صحابہ کو بے وقوف کہتے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفهاء ولیکن لا یعلمون، میرے نبی پاک کے جانثاروں کو بے وقوف کہنے والے حقیقت میں خود بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے، یہ جاہل ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں مالک کائنات نے ارشاد فرما دیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ،
और लोगों, सहाबा के दर्जात बराबर नहीं हैं। कुछ के दर्जात ज्यादा हैं, कुछ के दर्जात कम हैं, लेकिन शर्फे सहाबियत में वो बराबर हैं। मालिक कायनात सूरह अल हदीद आयत नंबर 10 में ऐलान करते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी फतह मक्का से पहले पहले मुसलमान होने वाले, उनका इस्लाम तो सही था, और फतह मक्का के मौके पर जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तलवार से डर के, मुसलमानों की फतूहात से डर के इस्लाम कबूल किया, इनको तुलाका कहा जाता था। कुरान मजीद ने इस बात का इनकार किया है। कुरान मजीद कहता है, अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, नबी पाक के सहाबा में से चाहे कोई फतह मक्का से पहले मुसलमान हुआ या फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ, अल्लाह ताला ने फतह मक्का से पहले मुसलमान होने वालों को दर्जा तो ज्यादा दिया है कि उनका दर्जा बहुत है कि उन्होंने तंगी में, उन्होंने परेशानी में हिजरतें की, जिहाद किया, गज़वात किए, अपने घर बार छोड़े और तंगी के आलम में रब के दीन पर माल खर्च किया, उनका दर्जा ज्यादा है। लेकिन जो लोग फतह मक्का के बाद भी मुसलमान हुए, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने सबसे जन्नत का वादा किया है। चाहे कोई फतह मक्का से पहले मुसलमान हुआ, चाहे कोई फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया है। जन्नत का वादा फतह मक्का से पहले वालों के लिए भी है और जन्नत का वादा फतह मक्का के बाद मुसलमान होने वालों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सहाबा की जमात तो बाबरकत जमात है, इनकी वजह से मुसलमानों पे बरकत रहेगी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद, बल्कि सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत है, इशा की नमाज पढ़ाई, मगरिब की नमाज पढ़ाई, फिर हम मस्जिद में बैठे रहे यहां तक कि हम इशा की नमाज का इंतजार करने लगे। नबी पाक अपने हुजरा मुबारक से बाहर आए, हमसे पूछा गए नहीं। हमने कहा हमने सोचा कि इशा भी आपके साथ पढ़ के जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजर को आसमान की तरफ उठाया और नबी पाक अक्सर अपने चेहरा मुबारक को आसमान की तरफ उठाते। रात हो चुकी थी, सितारे तुलू हो चुके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठा के कहा, और लोगों, अन्नुजूम अमानतुन लिस्समा फैज़ा ज़हबतिन नुजूम अतस्समा मा तुअद। ये सितारे आसमान के लिए अमन की अलामत हैं। जब सितारे चले जाएंगे आसमान बिखर जाएगा। और फरमाया व आना अमानतुन लिअस्हाबी फैज़ा ज़हबतु अता अस्हाबी मा युअदुन। फरमाया और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के लिए अमन की जमानत हूं। जब मैं चला जाऊंगा मेरे सहाबा को ऐसे फितने आएंगे, परेशानियां आएंगी, मायूअदुन, जिसका वादा मेरे सहाबा को दिया गया। और फरमाया व अस्हाबी अमानतुन ले उम्मती, और ये सहाबा, फरमाया मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमन का पैगाम है। जब मेरे सहाबा दुनिया से चले जाएंगे मेरी उम्मत में ऐसे फसाद पड़ेंगे, ऐसे फितने पड़ेंगे, ऐसी आजमाइशें आएंगी जिसका वादा उम्मत से दिया गया। यह हदीस नबी पाक फरमाते हैं कि मैं अपने सहाबा के लिए अमन हूं और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक ने फरमाया एक जमाना आएगा, कुछ लोग
मुसलमानों का एक गिरोह गज़वा करने के लिए, क़िताल करने के लिए निकलेगा। उनसे पूछा जाएगा जब वो दुश्मन के मुकाबले में खड़े होंगे, क्या तुम में कोई ऐसा शख्स भी है जिसने नबी पाक को अपने नजरे ईमान से देखा हो? क्या तुम में कोई नबी पाक का सहाबी है? फयुकालो नाम, कहा जाएगा हां, हम में नबी पाक का सहाबी, इस जमात में, लश्कर में एक सहाबी मौजूद है। फयुफ्ताहु लहुम बिही, नबी पाक ने फरमाया जब कहा जाएगा कि जिस गज़वे में मेरा सहाबी मौजूद है, मेरे सहाबी की बरकत की वजह से, अल्लाह की रहमत की वजह से अल्लाह ताला मुसलमानों के उस लश्कर को फतह अता फरमा देंगे। फिर अगला गज़वा होगा, फिर अगले जमाने में गज़वा होगा। फिर पूछा जाएगा क्या तुम में कोई ऐसा शख्स है जिसने उसको देखा हो जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा हो? क्या नबी पाक के सहाबी किसी सहाबी को देखने वाला कोई है? कहा हां, हम में नबी पाक के सहाबा को देखने वाला कोई मौजूद है। जब यह कहा जाएगा फयुफ्ताहु लहुम बिही, नबी पाक के सहाबी को देखने वाले के मौजूद होने की वजह से अल्लाह ताला उस बरकत की वजह से उन्हें फतह अता फरमा देगा। फिर गज़वा होगा, फिर पूछा जाएगा क्या इस मुसलमानों के लश्कर में कोई ऐसा शख्स है जिसने ऐसे बंदे को देखा हो जिसने आगे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबी को देखा हो? जिसने ऐसे बंदा है जिसने ताबी को देखा हो, उस ताबी ने नबी पाक के सहाबी को देखा हो। पहले गज़वे में सहाबी मौजूद है, जी मौजूद है, अल्लाह फतह अता फरमा देंगे। दूसरे गज़वे में सहाबी को देखने वाला मौजूद है, जी मौजूद है, सहाबी का शागिर्द मौजूद है, फतह हो जाएगी। तीसरे गज़वे में क्या सहाबी को देखने वाले का कोई शागिर्द देखने वाला मौजूद है? फिर फतह हो जाएगी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, एक आदमी ने सवाल किया, साला रजुलन अय्युन नास खैरुन, अल्लाह के प्यारे महबूब ये बताइए कि लोगों में सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं? आपने फरमाया अल कर्नुल लज़ी अना फीह, लोगों में सबसे बेहतरीन जमाना, सबसे बेहतरीन नस्ल, सबसे बेहतरीन जनरेशन, आपने फरमाया अल कर्नुल लज़ी अना फीह, लोगों में सबसे बेहतरीन लोग वो है कि जिन लोगों के अंदर मैं पाया जा रहा हूं। इसका माना यह है कि अल्लाह ताला की जमीन पर अंबिया के बाद अगर सबसे बेहतरीन कोई लोग हैं तो नबी पाक के सहाबा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, एक मौके पे फरमाया खैरु उम्मती करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फरमाया मेरी उम्मत में सबसे बेहतरीन अगर कोई जमाना है तो मेरा जमाना, मेरे जमाने के लोग, उसके बाद अगला जमाना, उसके बाद तीसरा जमाना। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने नबी पाक को जो जमाना अता किया, जो लोग अता किए, जो कर्न अता किया, जो अहद अता किया, वो पूरी इंसानियत के जमानों में सबसे बेहतरीन जमाना था। और उस जमाने के मोमिन मुसलमान बाकी सारी क़यामत तक आने वाले लोगों से ईमान में, फजल में, शरफ में, इज्जत में, मुकाम में सबसे ज्यादा हैं। लोगों, ऐसे लोगों पर तबर्रा नहीं किया जा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बू अस्हाबी, ला तसुब्बू अस्हाबी, फरमाया लोगो मेरे सहाबा पे तनकीद मत करो, मेरे सहाबा पे सबो शतम मत करो, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, मेरे सहाबा की गलतियों के कीड़े मत निकालो। फलो अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा, सहीह बुखारी की हदीस है। नबी पाक ने फरमाया और तुम में से, बाद में आने वाले लोगों में से अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में एक ओहद पहाड़ भी
सोने का खर्च कर दे। मेरे नबी पाक के सहाबा का खर्च किया हुआ एक मुद 500 ग्राम का गल्ला अल्लाह के रास्ते में एक सहाबी का खर्च करे, और बाद में आने वाला अल्लाह के रास्ते में और पहाड़ सोने का खर्च कर दे, तुम उनके खर्च किए हुए 500 ग्राम के गल्ले के अजर को नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ताला ने नबी पाक के सहाबा के बारे में कहा, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व कर्रा वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। के लोगो, ऐ मेरे नबी पाक के सहाबा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद कर लिया। कोई सहाबी मुनाफिक हो सकता, कोई सहाबी मुर्तद हो सकता। जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं, और जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं। ये बात पक्की याद रख लें, काम आएगी। कहते फलां बंदा ईमान लाया, मुर्तद हो गया, और जो मुर्तद हो जाए वो सहाबी उम्मत के यहां सिर्फ वह बंदा है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान की हालत में या मुलाकात की हो, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईमान की हालत में देखा हो और फिर उसकी मौत ईमान पे हुई हो, उसको सहाबी कहते हैं। मालिक कायनात ने कहा, अल्लाह ताला ने अपने नबी के सहाबा के लिए ईमान को पसंद कर लिया और उनके दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दिया, और अल्लाह ताला ने कुफर को, फिसक को, फिस्यान को, इस्यान को, नाफरमानी को सहाबा के लिए नापसंद कर लिया। उलाइका हुमुर राशिदून। ये मेरे नबी के सहाबा सारे हिदायत वाले लोग, सारे सहाबा उलाइका हुमुर राशिदून। और कभी मालिक कायनात ने कहा, वालज़महुम कलिमत तक़वा कानू हक्का बिहा वाहलहा। मालिक कायनात ने उनके दिलों में तकवा के कलमा को लाजिम कर दिया, क्योंकि अगर उम्मत में नबी अंबिया के बाद तकवा के सबसे ज्यादा कोई हकदार थे तो वो नबी पाक के सहाबा थे। अगर तकवा के कोई अहल थे तो नबी पाक के सहाबा थे। मालिक कायनात ने उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिए, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने सारे के सारे सहाबा से जन्नत का वादा किया है, चाहे कोई फतह मक्का से पहले ईमान लाया, चाहे कोई फतह मक्का के बाद ईमान लाया। सारे के सारे सहाबा नबी पाक के जानसार हैं, आपके साथी हैं। आपने उनको सबसे बेहतरीन जमाने के लोग कहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा पे तनकीद नहीं करनी। आपने फरमाया, अक्रेमू अस्हाबी, मेरे सहाबा का इकराम करो, इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो। और मालिक कायनात ने तो फैसला फरमा दिया, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना वलिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। जो बाद में आने वाले लोग हैं, बाद में आने वाले लोग जो बाद में आएंगे, इनके बाद उनका वजीफा यह है कि वो रब से कहें, रब्बना इग़फिर लना वलिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ऐ अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमसे पहले जो ईमान के साथ दुनिया से चले गए उनको भी बख्श दे। वला तजल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। बाद में आने वाले मोमिन रब से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह किसी मोमिन के बारे में हमारे दिल के अंदर कोई मैल कुचैल बाकी ना रखना। और जो कहे कि मुझे फलां सहाबी के बारे में मेरे दिल के अंदर कोई मैल है, मेरे दिल के अंदर, वो कहता है, एक बंदा है, मैं इंशाल्लाह उस पर तस्करा करूंगा। हमारे इलाके में भी ये फितना फैलता जा रहा है। मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं, जुमा तो मेरे पास पढ़ते हैं, बाद में जाके इंटरनेट पे तकरीरें सुनते हैं, कहते हैं गल्लां तो बड़ियां चंगियां करता है। उनको पता नहीं है कि ये कितना जहर आलूद आदमी है और नबी पाक के सहाबा का कितना दुश्मन है और राफजियों का कितना बड़ा हमायती है। मैं आखिर में फिर पैगाम देना चाहता हूं, अगला खुतबा तो इंशाअल्लाह सैयदना सिद्दीक अकबर की शान पे पढ़ाया जाएगा और इंशाअल्लाह नबी पाक के साथी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर के, हजर के, हौज़े कौसर के, मेजार के, गार के यार सिद्दीक अकबर की शान बयान की जाएगी। लेकिन एक बात आखिर में कहता हूं, यह मुल्क पाकिस्तान
अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के उलमा ने, पाकिस्तान की अवाम ने बड़ी ज्यादा जानें देकर, जब लीबिया तबाह हो रहा था, इराक तबाह हो रहा था, शाम तबाह हो गया, यमन तबाह हो गया, हमने जिम्मेदारी का सबूत देके इस मुल्क को शिया सुन्नी फसादात से बचाया है और रोका है। और मैंने खुतबे के शुरू में भी कहा कि ये जो बदजुबान हैं, ये जो बदजुबान हैं, इन्होंने एक दिन के लिए भी अपनी जबान को नहीं रोका। ये अहले सुन्नत उलमा का ज़र्फ है, जिम्मेदारी है कि उन्होंने हालात का इदराक करके मुल्क के अंदर कोई फसाद पैदा नहीं होने दिया, अपनी अवाम को, अपने मुक्तदियों को अमन का दर्स दिया। लेकिन भाई क्यों गर्दशे मदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूं, प्याला और सागर नहीं हूं मैं। वो इधर से बटन बंद कर दें यार। मुल्के पाकिस्तान के अंदर बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन फसादात को रोका गया और हमने लोगों से कहा कि काफिर काफिर की गर्दान बंद कर दो, किसी को भी काफिर मत कहो, इससे फसाद फैलता है। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं और जिम्मेदारी से कह देता हूं और किसी भी नताइज की परवाह किए बगैर कह सकता हूं, हर मुसलमान का यह जज्बा है। हमने फसाद को रोकने के लिए अपनी जबानों को बंद किया, तुम्हारे फसाद को बर्दाश्त भी किया, लेकिन काबा के रब की कसम, नबी पाक की हदीस है, बंद कर दें इसको, नबी पाक की हदीस है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को काफिर कहे, अगर वो काफिर नहीं है तो कहने वाला काफिर हो जाता है। काबा के रब की कसम, मैं ये जिम्मेदारी से बात कहता हूं, जो बंदा, अब आपने मेरे साथ जवाब देना है, जो बंदा नबी पाक के नवासे हुसैन को काफिर कहे वो क्या है? जो नबी पाक के नवासे हसन को काफिर कहे वो क्या है? जो नबी पाक के दामाद सैयदना अली उल मुर्तजा को काफिर कहे, बोलो। जो नबी पाक की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा की तौहीन करे और उनको काफिर कहे, वो काफिर है। अब जवाब देना, जो नबी पाक के सहाबी सिद्दीक अकबर को काफिर कहे वो काफिर है। जो नबी पाक के सहाबी उमर इब्ने खत्ताब को काफिर कहे वो, जो नबी पाक के सहाबी उस्मान ज़ुन्नुरैन को काफिर कहे वो, जो नबी पाक के किसी भी सहाबी को काफिर कहे, चाहे उस सहाबी का ताल्लुक अहले बैत एज़ाम से हो या नबी पाक के आम सहाबा से हो, हम उसको मुसलमान मानते नहीं हैं। वमा तौफीकी इल्ला